BJP Karnataka leaders and workers are holding protests in Bengaluru's Freedom Park against the Congress party. They are demanding an apology from Congress MP Rahul Gandhi for the emergency that was imposed in the country by his grandmother and former Prime Minister Indira Gandhi on June 25, 1975. This protest comes after Prime Minister Narendra Modi raked up the incident in his speech to the nation to mark the start of the 18th Lok Sabha. PM Modi said that the emergency was a big blot on India's democracy and the new generation will never forget it. My colleague Belly with us on the broadcast to give us more details on this. Belly, Karnataka, BJP Karnataka workers and leaders are of course now holding a protest and they're demanding an apology amidst all the developments that are taking place. If you could give our viewers an understanding on what exactly is taking place in Karnataka. Certainly, Samari. The BJP workers in Karnataka want an unconditional apology from both Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge for the comments that they had made on the undeclared emergency during Prime Minister Modi's tenure. So they are of the view that it is Rahul Gandhi who should be tendering an apology to the people of India for all these mismanagement that were happening earlier during the Congress ruling the country for decades, and now when some changes on the positive sides are seen or it's coming out, it is the Congress who's putting a stop to it, and they are doing petty politics in the name of the secularism and things like that. So these are the allegations that the state BJP workers are portraying, and they want an unconditional apology from Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the comments that they had made on the emergency rule in India. All right, thanks Belly for joining in and sharing all those details with our viewers. Meanwhile, joining us at this point of time is Mr. Anuj Atre, Congress spokesperson. Sir, a very good afternoon to you and thank you so much for taking out time and speaking to us on NewsX. Now, BJP Karnataka leaders and workers are demanding an apology from Congress MP Rahul Gandhi, and this is of course in relation to the 1975 emergency. How does the Congress respond to this? See, 75 emergency is very well known to all the countrymen of India, as it was a declared emergency by the government, और उसके definitely consequences हुए थे, but उसके कुछ positive parts भी थे, but whatever it was not at all hidden. It was all open, it was all clear, for which Congress party has apologized, for which Congress party has said कि ठीक है जो हुआ, whatever has happened. लेकिन क्या पिछले 10 सालों से जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, इज इट नॉट मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस टू द पीपल ऑफ कंट्री? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कंट्री के सामने आकर के माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह से आपने एजेंसीज को जो बहुत ज्यादा मिसयूज करके अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन पार्टीज को, या जो भी आपको सूट नहीं करते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, चाहे किसी भी डेमोक्रेटिक पिलर की बात करें, चाहे हम मीडिया इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, आपने उनको भी नहीं बख्शा है, आपने इंडस्ट्रीज को भी नहीं बख्शा है, आपने छोटे बिजनेसमैन को नहीं बख्शा है, आप पॉलिटिशियंस और अपोजिशन लीडर्स को और उनकी पार्टीज को तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम करती हैं. व्हाट इज दिस? क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? आज जिस तरह से देश में पेपर लीक हो रहा है और मोर देन 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो आज जिस तरह से एक ह्यूमिलिएशन में जी रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से एक बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में जी रहे हैं, क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? आप उन 2 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनके साथ देखिए, उनकी +4 कर दीजिए, फैमिली +5 मेंबर्स कर दीजिए. 100 करोड़ लोगों को आपने टेरराइज कर दिया है. कितने स्टूडेंट्स जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, कितने पेरेंट्स जो हैं परेशान हैं कि लाखों रुपए खर्च के तैयारी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाके एग्जाम 600 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे, और एक दिन पहले मालूम होता है पेपर लीक हो गया आपका, वहां पहुंच के मालूम होता है पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया है। ये सब क्या है? तो आज सवाल ये है कि हमें प्रेजेंट में बात करना चाहिए। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद भी आज ये प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं, अपने 10 साल के रिजीम की बात नहीं करते। कहीं ना कहीं ध्यान अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पुरानी बातें करेंगे, 75 की बात करेंगे, 77 की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, इस तरह की बातें करके उनका कहीं ना कहीं जो है लाइक कैरेक्टर एसोसिएशन किया जा रहा है, इमेज डेंट की जा रही है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन लोगों ने कंट्री डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज भी हम लोग एक डेवलपिंग कंट्रीज के साथ डेवलप नेशन होने जा रहे हैं। आप बताइए आपका क्या 10 साल के टेन्योर में आपका क्या योगदान है कंट्री के लिए? कोई योगदान नहीं है, एक्सेप्ट कि आपने देश का नुकसान किया है, इकोनॉमी को आपने एक इकोनॉमी इमरजेंसी देश में लगा दी है, इकोनॉमिकली आपने सबकी बैकबोन तोड़ दी है, कंट्री की इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया है। तो ये सारी इमरजेंसीज जो ये कर रहे हैं इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, और जो हेंटर वाली गवर्नमेंट हो गई है, वो सब कंट्री देख रही है, झेल रही है, उसका जवाब नहीं। All right, so okay, with that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing our perspectives with our viewers. Meanwhile, we have some reactions coming in on this. Let's take a listen. काला दिवस तो हमारे लिए आज ही है, क्योंकि आज पहली बार मतलब कि पूरे देश से सांसद चुन के आ रहे हैं, और आज ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ानी प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों ने शुरू कर दी है। तो हमारे लिए तो पिछले 10 साल भी काले दिन थे, क्योंकि आए दिन ही डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में की जा रही है। ऑपोजिशन के लीडर्स को उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है। आप रिसेंटली भी देखिए अरविंद केजरीवाल जी के मतलब के अभी जज साहब की स्टेटमेंट भी नहीं आई, उससे पहले ईडी कोर्ट में चली जाती है। तो सारा कुछ पूरे देश के लोग देख रहे हैं। पिछले 10 साल से हमारे लिए तो काला दिन ही चल रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.